Hello future chartered accountants. So today we are here not to revise any chapter but rather to discuss how to present our audit paper in our examinations. So this video we will keep it short and we will try to cover a maximum bullet points that we need to keep in mind while writing the answers. So the first bullet point to write in the answer is to first read out the question properly, read out the questions properly. So what do you mean by it? So let's start. I will give you some examples for it, and then we will discuss some of the answers for it and what you can write in the examinations. So let's start with the July 2021 paper. It was one of the toughest paper I actually have seen since the new course paper has started. Actually, what was tough in this paper was that there were not many questions that were asked from the previous examinations. So that made this paper a difficult one. So to start with, let's what I said is to first read out the question very specifically, you need to read out the question properly, and last in the audit paper you need to read out the last lines, very important, because these last lines actually change the structure of the question. So you need to more specifically focus on these last lines, because these last lines includes the question that we need to answer. So ये बहुत important है that we understand the meaning of these lines. अब एग्जाम्पल करते हैं. पहले क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट नंबर ए, जुलाई 21 का फर्स्ट क्वेश्चन था, जहां पे ये बोला गया था, मेसर्स एचजी एंड कंपनी chartered accountants were appointed as the statutory auditors of XYZ Limited for the FY 2020-21. The company implemented internal controls for the prevention and early detection of any fraudulent activity. हमने पढ़ा है कि internal controls लाना किसकी जिम्मेदारी है? मैनेजमेंट की, और मैनेजमेंट ने ये अपनी जिम्मेदारी भली भांति पूरी करी. ठीक है. ऑडिटर्स कैरिड आउट टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स. ऑडिटर्स ने टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स परफॉर्म किया एंड फाउंड आउट नो मेजर ऑब्जर्वेशन. कुछ भी ऑब्जर्वेशन उन्हें नहीं मिली. After the completion of audit report was issued. Fraud pertaining to the area of inventory came to the light subsequently for the period covered by the audit. Fraud पता चला, इन्वेंट्री में फ्रॉड हो रखा है. ठीक है. एंड द ऑडिटर्स वर आस्क्ड टू मेक सबमिशन. ठीक है. उन्होंने ये फ्रॉड क्यों नहीं पकड़ पाए? ऑडिटर्स ने बोला that because of inherent limitations of audit. हम inherent limitations of audit, it is not possible to get persuasive evidence of certain matters like fraud. हमें fraud जैसे matters का हमें persuasive evidence नहीं मिल सकता due to inherent limitations of audit. अब आपके माइंड में आना चाहिए, अब आपने पढ़ा क्वेश्चन में क्या पूछा है? डू यू थिंक ऑडिटर मेड करेक्ट स्टेटमेंट्स? तो सबसे पहले आपसे पूछा गया है क्या ऑडिटर ने जो ये बोला है, ऑडिटर ने क्या बोला? बिकॉज ऑफ इनहेरेंट लिमिटेशंस ऑफ ऑडिट इट इज नॉट पॉसिबल टू गेट persuasive evidence of certain matters like fraud. It is not possible to get persuasive evidence. तो अभी आपको पता है inherent limitations of audit क्या क्या होती है. आपको पता है, बचपन से आप पढ़ के आए हो, 3 inherent limitations of audit होती है. फर्स्ट है नेचर ऑफ फिनेंशियल रिपोर्टिंग, दूसरा है नेचर ऑफ ऑडिट प्रोसीजर्स, तीसरा है टाइम एंड कॉस्ट इफेक्टिवनेस. नेचर ऑफ फिनेंशियल रिपोर्टिंग में क्या होता है कि लेट सपोज application of Ind AS or the financial reporting framework involves judgment that needs to be applied by the management. इसलिए इसमें क्या होता है? There are some inherent limitations. Nature of audit procedures means ऑडिटर 2 टाइप के प्रोसीजर्स परफॉर्म करता है. फर्स्ट वन मीन टेस्ट ऑफ कंट्रोल, दूसरा सब्सटैंटिव प्रोसीजर्स. और जरूरी नहीं है कि जो हमारे सैंपल्स में डेटा आए उसमें मिसस्टेटमेंट हो, भले ही दूसरे डेटा में मिसस्टेटमेंट हो सकती है. तो हमारे सैंपल्स में कोई मिसस्टेटमेंट नहीं आई, तो इसका मतलब क्या हुआ? ऑडिटर्स प्रोसीजर्स आर रेस्ट्रिक्टेड ओनली टू द सैंपल सेलेक्टेड. इसलिए द नेचर ऑफ ऑडिट प्रोसीजर इज सच दैट वी कैन नॉट डिटेक्ट मटीरियल, मतलब ऐसा भी हो सकता है दैट आर ऑडिट प्रोसीजर्स फेल टू डिटेक्ट अ मटीरियल मिसस्टेटमेंट. लेकिन टाइप्स ऑफ ऑडिट प्रोसीजर क्या है? टेस्ट ऑफ कंट्रोल एंड सब्सटैंटिव प्रोसीजर्स. लेकिन यहाँ पे ऑडिटर ने क्या किया? द ऑडिटर्स कैरिड आउट टेस्ट ऑफ कंट्रोल एंड फाउंड आउट नो मेजर ऑब्जर्वेशन. आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ ऑडिट रिपोर्ट वॉज सबमिटेड बाय द ऑडिटर्स. यहाँ पे ऑडिटर साहब ने भाई साहब सिर्फ टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स किया. ठीक है. तो अब देखो, हमने सबसे पहले आइडेंटिफाई किया यहाँ पे क्या है? टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स के बारे में लिखा है. तो ये जो इनहेरेंट
इनहेरेंट लिमिटेशंस है, ये किससे रिलेटेड पूछ रहे हैं? 3 इनहेरेंट लिमिटेशंस थी। एक है नेचर ऑफ फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, एक थी नेचर ऑफ ऑडिट प्रोसीजर्स, एक थी टाइम एंड कॉस्ट इफेक्टिवनेस। ठीक है, कि टाइम बहुत ज़्यादा लग जाएगा ऑडिट में या फिर कॉस्ट बहुत ज़्यादा लग जाएगी। तो हमने पढ़ा कि भाई साहब कौन सी इनहेरेंट लिमिटेशन पूछी गई है, तो हमें पता चला दिस रिलेट्स टू नेचर ऑफ ऑडिट प्रोसीजर, क्योंकि ऑडिट प्रोसीजर का नेचर क्या होता है? टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स होता है और सब्सटैंटिव प्रोसीजर। तो हमने सबसे पहले स्टार्ट किया एज पर ऐसे 200, एज पर ऐसे 200। ऐसे का नाम लर्न करना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आपको क्या लिखना है? एज पर ऐसे 200 ओवरऑल ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द ऑडिटर व्हेन परफॉर्मिंग, जो भी है अपना, मैं ऐसे 200 का मैं खुद भूल गया, लेकिन चलो कोई नहीं, ऐसे 200 का आपको अच्छे से लर्न करना है। मतलब ऐसे 200 क्या, सबका नाम आपको मतलब एकदम तरीके से याद होना चाहिए। तो आपने लिखा एज पर ऐसे 200। ठीक है, अब आपने क्या लिखा? एज पर ऐसे 200 नेचर ऑफ ऑडिट प्रोसीजर। नेचर ऑफ ऑडिट प्रोसीजर आपने डिस्क्राइब किया, 2 टाइप के ऑडिट प्रोसीजर्स होते हैं आपके, 2 टाइप के ऑडिट प्रोसीजर होता है। पहला कौन सा होता है? टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स। पहला होता है टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स, दूसरा होता है सब्सटैंटिव प्रोसीजर्स। सब्सटैंटिव प्रोसीजर्स, ठीक है, सब्सटैंटिव प्रोसीजर्स। 2 टाइप के ऑडिट प्रोसीजर्स होते हैं, एक होता है टेस्ट ऑफ कंट्रोल, एक होता है सब्सटैंटिव प्रोसीजर्स। तो आपने बोला दे ड्यू टू इनहेरेंट लिमिटेशंस ऑफ ऑडिट। इनहेरेंट लिमिटेशन यहाँ पे कौन सी पूछी गई है? आपसे पूछी गई है सिर्फ नेचर ऑफ ऑडिट प्रोसीजर वाली, तो आपने सिर्फ उसका रेफरेंस देना है। आपने लिखा नेचर ऑफ ऑडिट प्रोसीजर इज वन ऑफ द इनहेरेंट लिमिटेशंस ऑफ ऑडिट। द ऑडिट इन्वॉल्व्स 2 टाइप्स ऑफ ऑडिट प्रोसीजर्स, नेमली टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स एंड द सब्सटैंटिव प्रोसीजर्स, बट हियर द ऑडिटर सोलली रिलाइड ऑन द टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स। ऑडिटर ने क्या किया? हेयर ऑडिटर, यहाँ पे ऑडिटर ने क्या किया? सिर्फ और सिर्फ टेस्ट ऑफ कंट्रोल के ऊपर रिलाई किया। तो क्या टेस्ट ऑफ कंट्रोल, हमें क्या ऐसा हो सकता है? हमारा स्टैंडर्ड्स बोलते हैं कि यू कैन नॉट रिलाई सोलली ऑन दी टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स, यू नीड टू परफॉर्म सब्सटैंटिव ऑडिट प्रोसीजर्स टू सब्सटैंशिएट योर टेस्ट ऑफ कंट्रोल। ठीक है, तो आप ऐसा नहीं कर सकते कि आपने सिर्फ टेस्टिंग ऑफ कंट्रोल्स कर दी और कुछ भी सब्सटैंटिव उसके ऊपर परफॉर्म नहीं किया, तो इट इज इनकरेक्ट। तो आपको सब्सटैंटिव प्रोसीजर्स तो परफॉर्म करने ही करने पड़ेंगे। तो एग्जाम्पल ऑफ सब्सटैंटिव प्रोसीजर्स यहाँ पे क्या हो सकता है? यहाँ पे बहुत सिंपल है, इन्वेंट्री का क्वेश्चन है ये। ठीक है, तो इन्वेंट्री में क्या हो सकता है? इन्वेंट्री में सबसे इंपॉर्टेंट सब्सटैंटिव प्रोसीजर होता है। सब्सटैंटिव प्रोसीजर कौन सा होता है? आपको ध्यान आना चाहिए, ऐसे 501 सबसे इंपॉर्टेंट सब्सटैंटिव प्रोसीजर होता है फिजिकल काउंटिंग। तो फिजिकल वेरिफिकेशन ऑफ द स्टॉक इज वन ऑफ द सब्सटैंटिव प्रोसीजर, और यहाँ पे ऑडिटर ने उसका कहीं पे मेंशन ही नहीं किया। तो मतलब ऑडिटर ने, देखो, नेचर ऑफ ऑडिट प्रोसीजर इज वन ऑफ द इनहेरेंट लिमिटेशंस ऑफ ऑडिट। सबसे पहला पॉइंट आपका ये आया। नेचर ऑफ ऑडिट प्रोसीजर्स 2 टाइप के होते हैं, एक होता है टेस्ट ऑफ कंट्रोल, एक होता है सब्सटैंटिव प्रोसीजर। लेकिन यहाँ पे ऑडिटर ने क्या किया? यहाँ पे ऑडिटर भाई साहब ने सिर्फ और सिर्फ ऑडिटर कैरिड आउट टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स एंड फाउंड आउट नो मेजर ऑब्जर्वेशंस। तो यहाँ पे भाई साहब ने सब्सटैंटिव तो परफॉर्म ही नहीं किया। सब्सटैंटिव में क्या हो सकता है? अब इन्वेंट्री का क्वेश्चन है, तो एग्जांपल माइंड में होना चाहिए। इन्वेंट्री के लिए सबसे मेजर सब्सटैंटिव प्रोसीजर होता है फिजिकल वेरिफिकेशन ऑफ इन्वेंट्री एज पर ऐसे 501। तो आपको लिखना चाहिए था ऑडिटर डिड नॉट परफॉर्म। यहाँ पे ऐसा कहीं पे भी पूरे क्वेश्चन में मेंशन नहीं है कि ऑडिटर ने क्या फिजिकल वेरिफिकेशन ऑफ इन्वेंट्री किया था या नहीं किया था। तो आपको क्या करना है? ऐसे 200 में सबसे पहले बताना है नेचर ऑफ ऑडिट प्रोसीजर इज वन ऑफ द इनहेरेंट लिमिटेशंस ऑफ ऑडिट। There are 2 types of nature of audit procedures, namely first being test of control, the second one being test of details, test of controls and the substantive procedures. अब आपने बोला the auditor here solely relied on the test of control and did not perform substantive procedures as required by SA 501, that is physical verification of inventory. अब यहाँ पे भाई साहब ने physical verification of inventory ही नहीं किया। तो अब मैंने बोला क्या सिर्फ test of controls can be a sole basis for the issuance of our report? It cannot be a sole basis. हमें test of controls के साथ we need to substantiate it with substantive procedure। तो क्या ऑडिटर ने जो ये स्टेटमेंट दी है, क्या ये करेक्ट स्टेटमेंट है कि भाई वो इनहेरेंट लिमिटेशंस ऑफ ऑडिट की वजह से वो इसे नहीं ढूंढ पाया? मैंने बोला नहीं, उसने तो अपने ऑडिट प्रोसीजर से ही ढंग से परफॉर्म नहीं किए, उसने सिर्फ और सिर्फ टेस्ट ऑफ कंट्रोल परफॉर्म किया, इसलिए वो फ्रॉड नहीं ढूंढ पाया। क्या पता अगर वो सब्सटैंटिव करता तो उसे पता चल जाता इन्वेंट्री थी नहीं, वहाँ पे फ्रॉड हो रखा था, तो क्या पता वो ढूंढ पाता। तो क्या ऑडिटर ने करेक्ट स्टेटमेंट दी है? तो नहीं दी है। तो ये अपने 2.5 नंबर आ गए जेब में। अपन ने क्या क्या लिखा? सबसे पहले लिखा नेचर ऑफ ऑडिट प्रोसीजर इज वन ऑफ द इनहेरेंट लिमिटेशंस,
टू टाइप्स के ऑडिट प्रोसीजर होते हैं, टेस्ट ऑफ कंट्रोल, इट्स सब्सटैंटिव प्रोसीजर्स. टेस्ट ऑफ कंट्रोल कैन नॉट बी अ सोल बेसिस फॉर द इश्यूएंस ऑफ आवर ऑडिट रिपोर्ट. वी नीड टू टेस्ट substantive, we need to perform substantive procedures in audit, in addition to in addition to test of controls. As per SA 501, one of the substantive procedure is to physically attend the inventory count. Here there in the question, assuming that the auditor failed to attend the inventory count, the auditor statement is not correct. इस conclusion को highlight कर देना है, इस conclusion को highlight कर देना है. क्या क्या words highlight करने थे इसमें, जैसे nature of audit procedure, आपने 3 limitations में से 8 limitation ढूंढी है. कौन सी? नेचर ऑफ ऑडिट प्रोसीजर. आपने एकदम करेक्टली ढूंढी है. आप एक ब्रिलियंट स्टूडेंट हो तो आप इसे हाईलाइट करो, नहीं तो पता कैसे चलेगा कि आपने ढूंढ लिया है 3 में से. अब बच्चे क्या करेंगे, बच्चे अपने आप को बच्चे सोचेंगे तीनों लिख देता हूँ, नेचर ऑफ ऑडिट प्रोसीजर भी लिख देता हूँ, टाइम एंड कॉस्ट भी लिख देता हूँ, नेचर ऑफ फाइनेंशियल रिपोर्टिंग भी ले देता हूँ. लेकिन आप समझो वो तभी करना चाहिए जब आपको कुछ समझ नहीं आ रहा है. अब यहाँ पे क्लियरली लिखा है इट इज आउट ऑफ टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स. टेस्ट ऑफ कंट्रोल क्या है? इट इज अ टाइप ऑफ ऑडिट प्रोसीजर. तो ये जो इनहेरेंट लिमिटेशन जो अराइज हो रही है वो किस चीज़ की अराइज हो रही है? इट रिलेट्स टू नेचर ऑफ ऑडिट प्रोसीजर ओनली. तो आपको स्पेसिफिकली मेंशन करना है नेचर ऑफ ऑडिट प्रोसीजर का और उसे हाईलाइट करना है. आपका 8 नंबर तो यही मिल गया कि आपने इनहेरेंट लिमिटेशन करेक्टली आइडेंटिफाई कर ली, कौन सी इनहेरेंट लिमिटेशन क्वेश्चन में पूछी गई है. फिर आपने ऑडिटर के ऊपर ओपिनियन दे दिया कि भाई 2 टाइप के प्रोसीजर होते हैं, टेस्ट ऑफ कंट्रोल, सब्सटैंटिव. सब्सटैंटिव इन्वेंटरी में क्या होता है? मेजरली फिजिकल वेरिफिकेशन ऑफ इन्वेंटरी. अब ऑडिटर ने फिजिकल इन्वेंटरी नहीं कर रही तो क्या वो ये स्टेटमेंट दे रहा है कि दैट ड्यू टू इनहेरेंट लिमिटेशन आई कुड नॉट फाउंड आउट दिस फ्रॉड. तो क्या वो करेक्ट स्टेटमेंट है? मैंने बोला नहीं, क्योंकि भाई उसने अपने ऑडिट प्रोसीजर से पूरे परफॉर्म नहीं करे. ठीक है, तो ही इज नॉट करेक्ट इन मेकिंग दिस स्टेटमेंट. तो आपको कंक्लूजन हाईलाइट करना है, नेचर ऑफ ऑडिट प्रोसीजर्स कीवर्ड हाईलाइट करना है. फिर आपको ये हाईलाइट करना है कि फिजिकल वेरिफिकेशन एज पर SA 501 इट सब्सटैंटिव ऑडिट प्रोसीजर होता है टू सब्सटैंशिएट आर इन्वेंटरी टेस्टिंग. तो हमें वो भी हाईलाइट करना है कि फिजिकल वेरिफिकेशन इट सब्सटैंटिव प्रोसीजर होता है, जिसके बारे में इस पूरे क्वेश्चन में कहीं पे भी मेंशन नहीं है. तो इसका मतलब ऑडिटर हैज परफॉर्म्ड ओनली एंड ओनली टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स. ठीक है, तो ये आपके माइंड में आंसर होना चाहिए. देखो मुझे भी नहीं पता सजेस्टेड आंसर क्या आएंगे, क्या मैं जो बोल रहा हूँ वो सही है या नहीं है, लेकिन हाँ जो क्वेश्चन ने मुझसे पूछा मैं उसका सीक्वेंस जवाब देने की कोशिश कर रहा हूँ. अगर मैं आपकी जगह स्टूडेंट होता तो मैं इस तरीके से आंसर देता. अब मुझे भी नहीं पता क्या आंसर्स है, मुझे नहीं पता, मैंने ना कोई सजेस्टेड आंसर्स देखे अभी तक, ना मुझे पता है इसका. लेकिन मैं अगर आपकी जगह पेपर दे रहा होता तो मैं इस तरीके से आंसर को अप्रोच करता. फिर मैंने दूसरा पॉइंट पढ़ा, ऑल्सो डिस्कस सर्टन सब्जेक्ट मैटर्स और अजर्शंस. अजर्शंस क्या क्या होती है? एजर्शंस ऐसी चीज़ें होती है जो आपकी बैलेंस शीट बोलती है. बैलेंस शीट बोलती है या प्रॉफिट एंड लॉस बोलता है. आपकी बैलेंस शीट क्या बोलती है? आपकी बैलेंस शीट बोल रही है प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट 10,000 करोड़ के है. इसका मतलब प्रॉपर्टी एंड प्लांट एंड इक्विपमेंट एग्जिस्ट करती है, इसकी जो वैल्यूएशन है वो करेक्ट है ना, इसकी जो वैल्यूएशन है वो करेक्ट है. तो कंप्लीटनेस है ना, ये एग्जिस्ट करती है, इसकी वैल्यूएशन सही है. ठीक है, अब मान लो प्रॉफिट एंड लॉस है. प्रॉफिट एंड लॉस क्या बोलता है हमसे चिल्ला चिल्ला के कि रेवेन्यू हुआ है, तो रेवेन्यू हुआ है तो रेवेन्यू मतलब ये खर्चा हुआ है, तो एग्जिस्टेंस. ठीक है, कंप्लीटनेस, एक्यूरेसी. तो ये 8 टाइप की ऑडिट असर्शंस होती है. तो इन्होंने हमसे पूछा कुछ ऐसे मैटर्स डिस्कस करो, ऑल्सो डिस्कस सर्टन सब्जेक्ट मैटर्स. एक तो बोला सब्जेक्ट मैटर डिस्कस करो, दूसरा असर्शंस डिस्कस करो. ठीक है, where it is difficult to detect material misstatement due to potential effect of inherent limitations. तो अब हमने बोला कुछ ऐसे सब्जेक्ट मैटर्स बताओ. कौन से सब्जेक्ट मैटर्स ऐसे हो सकते हैं जहाँ पे इट इज़ डिफिकल्ट टू डिटेक्ट मटीरियल मिसस्टेटमेंट. तो अभी आपने क्वेश्चन पढ़ा, अब क्वेश्चन में कौन सा आपको सब्जेक्ट मैटर लग रहा है जिसके ऊपर पूरा क्वेश्चन बेस्ड है? तो मैंने बोला क्वेश्चन इज टोटली अराउंड दी फ्रॉड इन दी एरिया ऑफ इन्वेंट्री. तो आपने लिखा सबसे पहला सब्जेक्ट मैटर तो यही है. सबसे पहला सब्जेक्ट मैटर कौन सा है? फ्रॉड इन दी एरिया ऑफ इन्वेंट्री. आपको कुछ नहीं करना, जो आपसे पूछा कौन सा सब्जेक्ट मैटर है. ठीक है, कौन सा सब्जेक्ट मैटर है जहाँ पे डिफिकल्ट है टू डिटेक्ट मटेरियल मिसस्टेटमेंट ड्यू टू इफेक्ट ऑफ इनहेरेंट लिमिटेशन. तो आपने बोला क्यों डिफिकल्ट है टू डिटेक्ट मटेरियल मिसस्टेटमेंट? इट इज ऑन अकाउंट ऑफ फ्रॉड रिलेटिंग टू एरिया ऑफ इन्वेंट्री. तो सबसे पहला पॉइंट तो ये आ गया. बाकी आप अब अपने मर्जी से लिख दो. जैसे लेट सपोज इसमें ज़्यादा नंबर नहीं मिलेंगे क्योंकि ये अपना अप टू द मार्क आंसर नहीं होगा, लेकिन अपन ने पहले पार्ट को अच्छे से परफॉर्म कर लिया, इसलिए
अपने 2 नंबर कहीं नहीं गए, 2 नंबर कहीं नहीं गए, वो 100% मिलेंगे, समझ रहे हो, क्योंकि अपन ने नेचर ऑफ ऑडिट प्रोसीजर्स आइडेंटिफाई किया, ठीक है। फिर हमने लिखा कि टेस्ट ऑफ कंट्रोल इज वन ऑफ द ऑडिट प्रोसीजर बट नॉट द एंटायर ऑडिट प्रोसीजर, वी नीड टू परफॉर्म सब्सटैंटिव ऑडिट प्रोसीजर दैट इज फिजिकल वेरिफिकेशन एज पर SA 501। तो क्या ऑडिटर करेक्ट है? नहीं है, नहीं है, नहीं है। अब हमने सब्जेक्ट मैटर्स पूछे, तो सब्जेक्ट मैटर्स पूछी और असर्शंस पूछी। असर्शंस मतलब क्या बैलेंस शीट आपकी बोलती है, आपकी बैलेंस शीट बोलती है PP 10,000 करोड़ का है, तो ये क्या बोल रहा है 10,000 करोड़ कि भाई मैं हूँ, मेरे पास लैंड है, बिल्डिंग है, आई एग्जिस्ट। तो पहली असर्शन क्या है? एग्जिस्टेंस, ठीक है। 8 टाइप की ऑडिटिंग असर्शंस होती है। तो अपन से ये पूछा कौन सी असर्शन है जहाँ पे डिफिकल्ट होता है टू डिटेक्ट मटेरियल मिसस्टेटमेंट। तो और दूसरा क्या पूछा? असर्शन के साथ साथ ऐसे सब्जेक्ट मैटर्स भी पूछा जहाँ पे इट इज डिफिकल्ट टू डिटेक्ट मटेरियल मिसस्टेटमेंट। तो अपने क्वेश्चन में सब्जेक्ट मैटर क्या था? फ्रॉड ऑफ इन्वेंटरी इज आर सब्जेक्ट मैटर, फ्रॉड ऑफ इन्वेंटरी इज आर सब्जेक्ट मैटर। तो आप सबसे पहले इसे लिख दो, फ्रॉड इज वन ऑफ द एरिया वेयर इट इज डिफिकल्ट टू डिटेक्ट मटेरियल मिसस्टेटमेंट ऑन अकाउंट ऑफ इनहेरेंट लिमिटेशंस। तो आपका पहला पॉइंट ये हो गया। बाकी आप जो आठों की आठों असर्शंस है उसमें से 2-3 असर्शन लिख दो, जैसे कि PP माइट नॉट एग्जिस्ट, ठीक है। हालांकि आंसर गलत हुआ, इसमें आपको नंबर नहीं मिलेंगे, लेकिन चलो तब भी अपन को आंसर लिखना है, तो अपन ने 2 पॉइंट्स और लिख दिए एडिशनल। 3 नंबर 2.5 नंबर का नीचे वाला पार्ट था, 2.5 नंबर का ऊपर वाला पार्ट था। ऊपर वाला अपन ने करेक्टली आंसर किया, नीचे वाला मुझे भी नहीं आता था, आपको भी नहीं आता था, तो आप इसमें टैक्टिकली खेल सकते थे। तो आपको बस एक पॉइंट जरूर लिखना था जो कि क्वेश्चन में भी मेंशन था, दैट इज फ्रॉड रिलेटिंग टू एरिया ऑफ इन्वेंटरी। ये आपको माइंड में रखना है। और ये आपको कैसे पता चलेगा? ये आपको पता चलेगा बाय रीडिंग द क्वेश्चन प्रॉपर्ली। तो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है? रीड आउट द क्वेश्चन प्रॉपर्ली एंड फिर फ्रेम करो आंसर इन योर माइंड बिफोर राइटिंग। फर्स्ट फ्रेम इट इन योर माइंड एंड देन राइट डाउन कीवर्ड्स विद प्रॉपर हाईलाइट्स। उसे हाईलाइट करो कि भाई आपने ये चीज़ ढूंढी है, आपने नेचर ऑफ ऑडिट प्रोसीजर इज वन ऑफ द इनहेरेंट लिमिटेशन, ठीक है, इज वन ऑफ द इनहेरेंट लिमिटेशन। तो आपने ये चीज़ ढूंढी है कि नेचर ऑफ ऑडिट प्रोसीजर इज वन ऑफ द इनहेरेंट लिमिटेशन। तो पता चलना चाहिए एग्जामिनर को कि आप एक सफल कैंडिडेट हो जिसने ये इनहेरेंट लिमिटेशन ढूंढ पाए, ठीक है। तो आप एक इंटेलिजेंट कैंडिडेट हो जो ये इनहेरेंट लिमिटेशंस ढूंढ पाया। अब बाकी बच्चों ने क्या किया होगा? सारी इनहेरेंट लिमिटेशन लिख दी होगी, चिपका दी होगी पूरी, नेचर ऑफ ऑडिट प्रोसीजर्स, नेचर ऑफ फिनेंशियल रिपोर्टिंग, टाइम एंड कॉस्ट। तो वो एक समझदार आंसर नहीं है। आंसर समझदार क्या है? आपने इनहेरेंट लिमिटेशन लिखी, उसको बताया कि इस क्वेश्चन में कौन सी इनहेरेंट लिमिटेशन है। सारी थोड़ी ना पूछी इनहेरेंट लिमिटेशन, ये थोड़ी बोला लिस्ट आउट ऑल दी इनहेरेंट लिमिटेशंस। क्वेश्चन ने पूछा है कि भाई क्या ऑडिटर करेक्ट था इन मेकिंग हिज स्टेटमेंट। तो अब ऑडिटर की कौन सी इनहेरेंट लिमिटेशन अपन को यहाँ पे दिखी? अपन को दिखा टेस्ट ऑफ कंट्रोल, मतलब इट रिलेट्स टू आवर ऑडिट प्रोसीजर्स, ठीक है। तो ये अपना पहला क्वेश्चन कंप्लीट होता है। अब अपन चलते दूसरे क्वेश्चन की तरफ। अब आया अगला क्वेश्चन जो जुलाई 21 के फर्स्ट का बी पार्ट है, ठीक है। अब मैं आपको वापस से रीड आउट द क्वेश्चन की सिग्निफिकेंस बताता हूँ। आप क्वेश्चन को ही नहीं पढ़ते, चक्कर पता क्या है? आप लिखोगे तो तब जब आप अच्छे से क्वेश्चन को पढ़ पाओगे। तो आपको सबसे पहले रीड आउट द क्वेश्चन, देन फ्रेम आंसर इन योर माइंड, देन राइट इट ऑन अ पीस ऑफ पेपर। आंसर 10 पेज का नहीं लिखना, 5 नंबर का क्वेश्चन है तो 1 पेज में आंसर खत्म हो जाना चाहिए। सिर्फ और सिर्फ रेलेवेंट वर्ड्स आने चाहिए। अपन पता क्या करते हैं? अपन ने क्वेश्चन पढ़ा नहीं, सीधा लिखना शुरू कर दिया। अरे उसमें होता क्या है? अपन पहले लिखते हैं, फिर उसे गलत करते हैं, फिर काटते हैं, फिर वापस से लिखते हैं। तो इससे क्या होता है? टाइम वेस्टेज भी हो रही है, सब कुछ हो रहा है। तो पहले क्या करना है? रीड आउट द क्वेश्चन प्रॉपर्ली, देन थिंक इन योर माइंड एंड देन राइट इट ऑन अ पीस ऑफ पेपर, जो कि आपकी एग्जामिनेशन शीट होगी, ठीक है। तो पहले आपको पढ़ना है ध्यान से, फिर रेलेवेंट प्रोविजन सोचने हैं और फिर उसे लिखना है। ऐसा नहीं कि क्वेश्चन पढ़ा लिखना चालू, हम कोई मशीन नहीं है। वी ऑल्सो नीड टाइम टू प्रोसेस व्हाट इज बीन आस्क्ड इनटू द क्वेश्चन। तो आपको जब भी टेक्निकल पेपर आता ना तो पहले क्वेश्चन को पढ़ो, क्या पूछना चाह रहा है वो, ठीक है। तो अभी देखो, ABC लिमिटेड हैज़ बीन डीलिंग इन टायर्स सिंस 1995, बहुत पुरानी कंपनी है, अपोलो टायर से भी पुरानी, ठीक है। चलो एनीवेज, ठीक है। द कंपनीज एनविसेस टू एक्सपेंड इट्स बिजनेस एंड वांटेड टू मैन्युफैक्चर द टायर्स बिसाइड ट्रेडिंग। तो वो बनाना भी चाहती है, वो अभी ट्रेडिंग कर रही थी, अभी उसे बनाना भी चाहती है। अकॉर्डिंगली द मशीनरी वॉज इम्पोर्टेड, इंस्टॉल्ड एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑपरेशंस कमेंस। द गवर्नमेंट ऑल्सो गेव सर्टन इंसेंटिव्स लाइक पावर सब्सिडी मिली, लैंड एक्विजिशन सब्सिडी मिली। आफ्टर 2 years ऑफ ऑपरेशन कंपनी को रिसीव हुआ नोटिस फ्रॉम द इनकम टैक्स अथॉरिटी टू पे टैक्स ऑन द इंसेंटिव रिसीव्ड इन द फॉर्म ऑफ पावर सब्सिडी। तो डिपार्टमेंट ने भाई साहब नोटिस भेज दिया, बोला टैक्स दे दीजिए जो आपको सब्सिडी मिली है। द कंपनी हाउएवर फाइल्ड एन अपील विद हायर टैक्स अथॉरिटीज, लेट्स सपोज CIT अपील, एंड द मैटर इज अनडिसाइडेड एज ऑन 31st of March 2021।
ठीक है। तो एज ऑन 31 मार्च 2021 द मैटर इज अनडिसाइडेड। डिमांड नोटिस आपके ऊपर सर्व हो चुका है, आपने अभी मैटर आपने अपील में चले गए, आपका मैटर अभी अनडिसाइडेड है। लीगल टीम ऑफ द कंपनी एंटिसिपेटेड दैट द टैक्स लाइबिलिटी माइट मैच्योर। तो सबसे पहले तो अभी देखो प्रोविजन कब बनता है, प्रोविजन तब बनता है वेयर इट इज प्रोबेबल दैट द आउटफ्लो ऑफ रिसोर्सेज विल बी रिक्वायर्ड टू सेटल द ऑब्लिगेशन। तो यहाँ पे हमें लगता है, लीगल टीम को ऐसा लगता है, इट इज मोर लाइकली देन नॉट दैट वी विल हैव टू पे दिस अमाउंट। तो लीगल टीम को ऐसा लगता है दैट द टैक्स लाइबिलिटी विल मैच्योर। और दूसरा देखो, दो कंडीशन होती है प्रोविजन बनाने की, इट इज प्रोबेबल दैट द आउटफ्लो ऑफ रिसोर्सेज विल बी मेड टू सेटल द ऑब्लिगेशन, एंड दूसरा एंड दी अमाउंट कैन बी रिलायबली एस्टिमेटेड। यहाँ पे अमाउंट भी हमें पता है 150 लाख। तो दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है। लीगल टीम को ऐसा लगता है कि भाई साहब ये पेमेंट हमें करनी पड़ेगी, तो वी नीड टू मेक प्रोविजन फॉर इट एज पर द प्रिंसिपल्स ऑफ क्या बोल सकते हैं, इंड AS 37 या फिर AS 29। तो अपन को प्रोविजन बनाना पड़ेगा एज पर द प्रोविजन ऑफ इंडिया 37 AS 29। आपने लिखा प्रोविजन बनना चाहिए। सबसे पहला पॉइंट तो आपका ये आ गया आंसर में। प्रोविजन तब बनता है जब आउटफ्लो ऑफ रिसोर्सेज होने हैं, वेयर इट इज प्रेजेंट ऑब्लिगेशन, है ना। प्रेजेंट ऑब्लिगेशन तब होता है जब आउटफ्लो ऑफ रिसोर्सेज होने हैं आपके, और दूसरा एंड अ रिलायबल एस्टिमेट कैन बी मेड। तो दोनों कंडीशन सेटिस्फाइड है, प्रोविजन बनना चाहिए। बट कंपनी हैज नॉट मेड प्रोविजन, कंपनी ने प्रोविजन नहीं बनाया। तो आपने क्या किया, कंपनी ने प्रोविजन नहीं बनाया, कोई बात नहीं। अब आपने बोल दिया, अब अपन को क्या करना पड़ रहा है, ठीक है। अब देखो आपने सीधा पढ़ा पेपर में, हाउ एन ऑडिटर शुड सी दिस मैटर एंड रिपोर्ट इन हिज ऑडिट रिपोर्ट। बस आपने इतना पढ़ा, आपने ये वाली लाइन ही छोड़ दी, कंसिडरिंग द प्रोविजन ऑफ कंपनीज एक्ट 2013। आप फिर आपने क्या पढ़ा, हाउ एन ऑडिटर शुड सी दिस मैटर एंड रिपोर्ट इन हिज ऑडिट रिपोर्ट। अब आपने बोल दिया सीधा क्वालिफिकेशन दे दो जी, क्वालिफाइड रिमार्क्स दे दो। आपने बोला क्वालिफाइड ओपिनियन दे दो एज पर ऐसे 705। आपने सीधा आंसर पे जंप करके, आपने पहले बताया होगा पेपर में कि एज पर द प्रोविजन नीड्स टू बी मेड। प्रोविजन क्यों बनना चाहिए, क्योंकि आउटफ्लो ऑफ रिसोर्सेज होने हैं एंड द अमाउंट कैन बी रिलायबली एस्टिमेटेड, एंड प्रोविजन बनना चाहिए। फिर आप सीधा पहुंच गए होंगे ऐसे 705 मॉडिफिकेशन। यहाँ पे क्वालिफाइड ओपिनियन जाना चाहिए, क्योंकि ये क्या है मैटर, क्वालिफाइड ओपिनियन इसलिए जाना चाहिए क्योंकि यहाँ पे मटीरियल मिसस्टेटमेंट है, लेकिन इसका कोई परवेसिव इफेक्ट नहीं है ऑन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट, और इसलिए आपको क्वालिफाइड ओपिनियन दे देना है। आपने इस तरीके से ऐसे 705 के हिसाब से जवाब दे दिया। लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन ने क्या पूछा आपसे, कंसिडरिंग द प्रोविजन ऑफ कंपनीज एक्ट 2013। आपने पढ़ी नहीं, आप चले गए बस सीधा, आपने ऐसे 705 लिखा, चिपका दिया पूरा। तो क्वालिफाइड ओपिनियन इसलिए जाना चाहिए, वो डब्बा याद किया कि हाँ क्वालिफाइड ओपिनियन कब जाता है, जब आपको या तो इन्फॉर्मेशन नहीं मिली, मटेरियल इन्फॉर्मेशन नहीं मिली, या फिर मटेरियल मिसस्टेटमेंट है और इसका इफेक्ट परवेसिव नहीं है, तो आपको क्वालिफाइड ओपिनियन दिया। आपने डब्बा याद किया, क्वालिफाइड ओपिनियन चिपका दिया पेपर में, क्वालिफाइड ओपिनियन देना है जी। अरे वो तो देना ही है, अगर ये आइटम मटीरियल है तो वो तो देना ही है। लेकिन क्या पूछा है पेपर में पूछा है कंसिडरिंग द प्रोविजन ऑफ कंपनीज एक्ट 2013। अब आपको याद होनी चाहिए कंपनीज एक्ट 2013 में ऑडिट रिपोर्टिंग की रिक्वायरमेंट्स कौन से सेक्शन में दे रखी है, तो आपको याद आना चाहिए सेक्शन 143 ऑफ द कंपनीज एक्ट, जहाँ पे लिखा है पावर एंड ड्यूटीज ऑफ ऑडिटर। पावर एंड ड्यूटीज ऑफ ऑडिटर आपने पढ़ा ही, आपने बस सीधा जंप कर दिया ऐसे 705। दिस इज नॉट करेक्ट। पहले आपको समझना पड़ेगा, फर्स्ट रेड आउट द क्वेश्चन। आपको ऑडिट का पेपर तभी अच्छा हुआ जब आप लास्ट की जो लाइनें है ना, लास्ट की लाइनें जितना ध्यान से पढ़ोगे ना, जितना ध्यान से, उतना अच्छा आंसर आपका जाने वाला है। तो आपने सबसे लास्ट की लाइन पढ़ी, कंसिडरिंग द प्रोविजन ऑफ कंपनीज एक्ट 2013। तो अब आपको रिपोर्टिंग ऐसे 705 में बाद में आना है, पहले कंपनीज एक्ट 2013 के उस सेक्शन पे जाना है जहाँ पे ऑडिटर रिपोर्ट करता है। तो दैट इज 143 सबसेक्शन 3। अब 143.3 में आइटम्स सोचो क्या क्या लिखे हैं 143.3 में। तो अब मैं आपको पढ़ाता हूँ 143.3 में क्या क्या आइटम्स लिखे हैं। आपने कभी ध्यान से पढ़ना। 143 में पहला लिखा है, क्या ऑडिटर ने सारी इंफॉर्मेशन ली है, क्या प्रॉपर बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन्ड है, क्या ब्रांच ऑफिस से जो रिटर्न आनी थी एज पर सबसेक्शन 8 क्या वो मुझे मिल चुकी है, ठीक है, क्या बैलेंस शीट प्रॉफिट एंड लॉस एग्रीमेंट है, इन एग्रीमेंट है विद द बुक्स ऑफ अकाउंट, ठीक है, क्या whether in his opinion the financial statement comply with accounting standard, क्या उसके ओपिनियन में अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स का कंप्लायंस हो रहा है। तो देखो पहले यहाँ पे रुकना, पहले आपको इसका भी रेफरेंस देना है, लेकिन अभी और भी रेफरेंस आएगा। तो देखो एक आंसर ये भी हो सकता था पॉसिबल आंसर कि अभी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का नॉन कंप्लायंस हुआ है क्योंकि प्रोविजन बनना चाहिए था लेकिन नहीं बना। तो 143.3 में भी रिपोर्टिंग हो सकती थी लेकिन नहीं। अभी आप और आगे चलो, ठीक है, 143.3 में भी रुकना था आपको, ठीक है, रुके आप, है ना। अब मुझे नहीं पता क्या आंसर आएगा, लेकिन मैं अपना फ्लो ऑफ
आंसर बता रहा हूँ, ठीक है, कैसे मैं आंसर करता। द ऑब्जर्वेशन और कमेंट्स ऑफ द ऑडिटर ऑन द फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन ऑन मैटर्स, ये भी नहीं है अपना पॉइंट। 164(2) में कोई डायरेक्टर डिस्क्वालीफाइड तो नहीं है, या कोई मेरा क्वालिफिकेशन एडवर्स रिमार्क, इसके बारे में तो मेरे को एक्सप्लेनेशन रिपोर्टिंग करनी पड़ती है अंडर 143(3)(h), ठीक है। और क्या कंपनी ने एडिक्वेट इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल लगा रखे। अब आते हैं अपन सच अदर मैटर एज में बी प्रेस्क्राइब, ये भी देख लेते क्या क्या मैटर्स प्रेस्क्राइब्ड है। तो यहाँ पर देखो सबसे पॉइंट, मुझे लगता है इंस्टीट्यूट यहाँ से रेफरेंस लेगा और इंस्टीट्यूट बोलेगा 143(3)(J) में 143(3)(J) में क्या रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट है। द ऑडिटर्स रिपोर्ट शैल ऑल्सो इंक्लूड देयर व्यूज एंड कमेंट्स, किसके ऊपर, ऑन द फॉलोइंग मैटर्स, नेमली वेदर द कंपनी हैज डिस्क्लोज द इम्पैक्ट इफ एनी ऑफ पेंडिंग लिटिगेशन, ये क्या है, पेंडिंग लिटिगेशन है, ऑन इट्स फिनेंशियल पोजीशन मींस बैलेंस शीट, इन इट्स फिनेंशियल स्टेटमेंट। तो क्या कंपनी ने प्रॉपरली डिस्क्लोज किया है इम्पैक्ट ऑन इट्स फिनेंशियल पोजीशन इन इट्स फिनेंशियल स्टेटमेंट। तो मेरे हिसाब से जब इंस्टीट्यूट आंसर देगा वो 109% वो इस क्लॉज का रेफरेंस देगा 143(3) सब क्लॉज जे, उसके अंदर रूल 11 के साथ अगर आप रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट पढ़ो तो अब हमने क्या किया, 143(3) क्लॉज नंबर जे रेड विथ रूल 11 का रेफरेंस दिया, जहां पे पेंडिंग लिटिगेशन का इम्पैक्ट वेदर द कंपनी हैज डिस्क्लोज, क्या कंपनी ने अप्रोप्रिएटली डिस्क्लोज किया है द इम्पैक्ट इफ एनी ऑफ द पेंडिंग लिटिगेशन ऑन इट्स फिनेंशियल पोजीशन इन इट्स फिनेंशियल स्टेटमेंट। तो मुझे लगता है इंस्टीट्यूट विद रेफरेंस टू कंपनीज एक्ट पूछा था तो इंस्टीट्यूट इस क्लॉज का रेफरेंस जरूर देगा, देख लेना आप आंसर में। और अगर आपको लगता है कि अकाउंटेंट स्टैंडर्ड का भी नॉन कंप्लायंस हुआ है तो आप 143(3)(E) का भी रेफरेंस दे सकते हो, लेकिन इसे बाद में देना, पहले आपका बोल्ड में आना चाहिए 143(3)(J रेड विद रूल 11। अब आपने क्या किया पेपर में, आपने सीधा लिख दिया क्वालिफाइड ओपिनियन। दिस इज नॉट करेक्ट बिकॉज आपने पढ़ा ही नहीं क्वेश्चन को। यहाँ पे लिखा है द कंसिडरिंग द प्रोविजन ऑफ कंपनीज एक्ट 2013। आप लिखो, आप, मैं ये नहीं बोल रहा कि ऐसे 705 के हिसाब से मॉडिफिकेशन का आप नहीं लिखो, लेकिन पहले आप क्वेश्चन तो पढ़ो कि किस रेफरेंस में आंसर देना है। मुझे कंपनीज एक्ट के रेफरेंस में आंसर देना है, तो मुझे 143(3) में अपनी रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट्स को एक बार वापस से गो थ्रू करना पड़ेगा। क्या मेरी रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट है, मैंने क्लॉज नंबर ए में देखा, बी में देखा, सी में देखा, डी में देखा, ई में देखा, ई में मैं रुका, मुझे पता चला अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का नॉन कंप्लायंस है, मैं रुका, लेकिन मैंने बोला चलो और भी आगे देख लेते हैं, ठीक है। फिर मैं जी में भी गया, एच में भी गया, आई में भी गया, जी में गया, फिर मैंने बोला सच अदर मैटर्स एज में बी प्रिस्क्राइब, फिर मैं रूल 11 में गया, रूल 11 में मैंने देखा क्या पेंडिंग लिटिगेशंस का इम्पैक्ट अप्रोप्रिएटली डिस्क्लोज हुआ इन एफएस। मुझे नहीं पता इसका आंसर क्या देगा इंस्टीट्यूट, मुझे नहीं पता क्वालिफाइड देगा, एडवर्स देगा, क्या देगा, लेकिन मुझे इतना जरूर भरोसा है इंस्टीट्यूट 143(3) क्लॉज नंबर जे रेड विद रूल 11 के साथ टच अपॉन जरूर करेगा। और अगर आप उस क्लॉज के ऊपर हिट कर जाते तो आपके 2 से 1 या 2 नंबर तो 100% बन जाते। तो इस तरीके से आपको क्वेश्चन को पढ़ना है। तो व्हाट इज इंपॉर्टेंट इज that you read out the question properly। सबसे पहले क्या है, सबसे पहले क्वेश्चन को रीड आउट दी क्वेश्चन प्रॉपरली, फ्रेम द फ्लो ऑफ आंसर इन योर माइंड। आपने माइंड में सोचा, जैसे अभी आपने सोचा 143(3)(A)B)(C)(D), ठीक है, फ्लो ऑफ आंसर इन योर माइंड, आपने माइंड में सोचा है ना, फ्रेम द फ्लो ऑफ आंसर इन योर माइंड and then आपने फ्लो बना लिया, then write it on a piece of paper, write it on your answer sheet, on your answer sheet। तो ये 3 स्टेप मॉडल है, ये जैसे अपन इंडियस 115 में 5 स्टेप मॉडल पढ़ते हैं, यहाँ पे 3 स्टेप मॉडल है ऑडिट के पेपर को ढंग से करने का। सबसे पहले रीड आउट दी क्वेश्चन प्रॉपरली, जिसमें भी सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, सबसे पहले लास्ट लाइन पढ़ो, ठीक है। इससे आपको पता चल जाएगा आपको आंसर किसके रेफरेंस में देना है, कंपनीज एक्ट के रेफरेंस में देना है, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स एक्ट के रेफरेंस में देना है, स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग के रेफरेंस में देना है। अब अपन क्या करते हैं, बस लिख के जाते हैं, मॉडिफाइड दे दो, क्वालिफाइड दे दो, एडवर्स दे दो। अरे पहले ये पढ़ो कि कंपनीज एक्ट के रेफरेंस में रिपोर्टिंग करनी है, स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग के रेफरेंस में रिपोर्टिंग करनी है। मैं मानता हूँ स्टैंडर्ड ऑन ऑडिटिंग के रेफरेंस में आपकी रिपोर्टिंग ठीक है, क्वालिफाइड देना है, लेकिन क्वेश्चन पूछ रहा है रिपोर्टिंग एज पर कंपनीज एक्ट, तो आपको 143(3) तो लिखना ही पड़ेगा ना, नहीं तो आंसर मैच कैसे होगा आपका आईसीआई से, ठीक है। तो दीज आर इंपॉर्टेंट पॉइंट। फिर हम बोलते हैं आईसीआई नंबर नहीं देता, नंबर तो तब देगा ना जब आपका आंसर रेलेवेंट होगा। अब आपने लिख दिया, पूछा है कंपनीज एक्ट का क्वेश्चन, जवाब दे रहे हो आप स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग से, ऐसे 705 लिख रहे हो, तो
वो एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। लिखो आप ऐसे 705, लेकिन बाद में लिखो, बाद में लिखो, पहले इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आने चाहिए। 143.3 जे रेड विथ रूल 11। मैं ये नहीं बोल रहा कि ऐसे 705 इंस्टीट्यूट अपने आंसर में नहीं लिखेगा, लिखेगा इंस्टीट्यूट, लेकिन बहुत छोटा सा पैरा लिखेगा, लेकिन बट मेजर फोकस विल बी ऑन 143.3 जे, क्योंकि वो एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो लास्ट लाइन पढ़ो, फ्रेम द फ्लो ऑफ योर आंसर इन योर माइंड, कि आपको कैसे कैसे आंसर करना है, देन राइट इट ऑन योर आंसर शीट। ये मैटर नहीं करता चाहे 2 पेज का आंसर आपको, और ये माइंड में रखना, योर आंसर शुड बी मैक्सिमम रेस्ट्रिक्टेड अप टू 1 और 1.5 पेज इफ द क्वेश्चन इज ऑफ 4 मार्क्स और ऑफ 5 मार्क्स। अगर आपका 1 या 1.5 पेज से ज़्यादा आंसर जा रहा है तो आप इसका मतलब रेलेवेंट आंसर नहीं लिख रहे, फिर आप कहानियाँ लिखने लग गए वहाँ पे। तो आपका रेलेवेंट आंसर अगर आप लिखोगे तो आपका 1 या 1.5 पेज में खत्म हो जाना चाहिए। तो मतलब यही पॉइंट है मेरा, ऑडिट में 1 या 1.5 पेज से ऊपर का आंसर नहीं होना चाहिए अगर, और कीवर्ड्स प्रॉपर्ली हाईलाइटेड होने चाहिए। जो आपको लगता है आपने अदर स्टूडेंट्स के कंपैरिजन में आपने बेटर परफॉर्म किया है ना, वो वर्ड्स 100% हाईलाइट होने चाहिए, तभी आपके नंबर बनेंगे। सो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स टू रिवाइज, फर्स्ट, write out the question with special emphasis on the last line that has been asked in the question. फ्लो ऑफ आंसर बनाओ माइंड में, एंड रेस्ट्रिक्ट योर आंसर अप टू मैक्सिमम ऑफ 1.5 और मैक्सिमम अप टू 2 पेज। अगर इससे ऊपर आपका आंसर जा रहा है ना, फिर आप कहीं ना कहीं आपको आंसर खुद नहीं पता याद हो, या आप जो लिखना चाह रहे हो मतलब पता नहीं, आप मतलब सही लाइन में नहीं जा रहे, ठीक है, बस आई मीन टू से दिस ओनली। और फिर आपको उसे आंसर शीट में उतार देना, ट्राई करना, रेस्ट्रिक्ट करना, और योर आंसर टू 1.5 या फिर 2 पेज मैक्सिमम। इससे अगर ऊपर जा रहा है तो फिर तो मतलब बहुत मुश्किल हो जाएगी एग्जामिनर के लिए भी, जो चेक करता है पेपर, मतलब बहुत मुश्किल हो जाएगी उसके लिए, फिर वो ऐसे ही नंबर देगा, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट ये नहीं है कि आप पेज कितने भर रहे हो, इंपॉर्टेंट ये है कि आपका कंटेंट किस लेवल का है। तो व्हाट मैटर्स इज द कंटेंट, नॉट द क्वांटिटी। सो विद दिस थॉट वी विल वाइंड अप दिस लेक्चर, एंड थैंक्स अ लॉट फॉर योर सपोर्ट. Do subscribe to my channel and do share it with your friends, because we are already on the verge of crossing 2000 subscribers. So it's been great honor for my channel to cross this landmark. With your continuous support, it has become possible. We'll need this support throughout this journey. So thanks a lot, guys.